What a joy it is to see you one more time through this program. कितना आनंद का विषय है इस कार्यक्रम के द्वारा और एक बार आपके साथ मिलना। I welcome you back to listen to the word of God and be blessed. मैं आपको स्वागत करता हूं और एक बार यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित हो जाए। By the grace of God, this day I am presenting a wonderful passage from the scripture, a wonderful topic to you that please listen and be blessed. आज ये दिन में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं एक अच्छा पद जो आप सुनने के बाद आपको आशीषित हो जाएंगे। You know one thing? आप जानते हैं एक बात, Our attitudes decides our altitudes. हम लोग का व्यवहार हम लोग का कार्यों को प्रकाश करता है। How we look at things, how we view and how we manage, what is our attitude, that attitude will decide the altitude. हम लोग कैसे देखते हैं, उसको कैसे निर्णय करते हैं, वो हम लोग का जो व्यवहार हम लोग का कार्यक्रम में आपको हम लोग को उठाता है। Let us come to Luke chapter 15. आइए हम लोग लूका उसका 15 को देखें। Verse number 4 says, 4 पद में ऐसे लिखा गया, A man having 100 sheep, and if he lose one of them, doth he not leave 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? तुम में से कौन है जिसकी से 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 के जंगल में छोड़कर उसे खोई हुई का जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। Jesus is saying this. प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है, One sheep is lost. एक भेड़िया खो गया। A man was having 100 sheep. एक आदमी के पास 100 भेड़ था, One is lost. एक भेड़ चला गया। 99 sheep he is carefully keeping in a certain place, that 99 is now safe, and after ensuring the safety of 99 he goes after that one which was lost. 99 भेड़ अभी ठीक है और उन लोग को ठीक सुरक्षा प्रदान किया, परंतु एक भेड़ जब कहाँ खो गया उसके लिए वो ढूंढने लगा। The shepherd doesn't say, after all one sheep it is gone, okay, no problem. और चरवाहा कभी नहीं बोला कि ओ एक भेड़ चला गया, मुझे कोई समस्या नहीं है। But then he goes and he seeks the lost one, and finally he finds it, and after finding it, the Bible says, Jesus says, with great joy he will bring back, and he will make the sheep join the 99. वो एक भेड़ को ढूंढने लगा और जब ढूंढने के बाद उसको मिल गया, उसका मन में बहुत आनंद आया। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो एक को लाके और 99 के साथ मिला के रखा। What a good loving businessman he is. कितना प्रेमी एक बिजनेसमैन वो आदमी है। He cannot lose that one sheep. वो चाहते नहीं कि एक भेड़ खो जाए। Like that, ठीक उसी प्रकार he goes on to say 2 more things. वो ऐसे दो तरह का बताया है। In all these 3 things, वो तो संपूर्ण 3 में ऐसे बताया। the end of his story says that there is great joy in heaven upon one sinner repenting for his sins. इसी तरह का 3 विषय वो बताया और अंत में बताया कि वो स्वर्ग में कितना आनंद है जो एक मिल गया और खो गया था, वो जो मिल के आ जाता है। And in another case, और एक दूसरा विषय में verse number 8, और पद 8 में, either what woman having 10 pieces of silver, if she lose 1 piece, doth not light a candle and sweep the house and seek diligently till she find it? ये कौन ऐसे स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हैं और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाकर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। A woman was having 10 pieces of silver, that is silver coins, एक महिला के पास 10 सिक्के थे, and 1 is lost. एक उससे खो गया। 9 she will keep it in a safe place. 9 ठो उसके पास संपूर्ण है। And she takes a broom and sweeps the floor, every room in the house. वो हर एक घर का हर एक कोठरी को वो साफ करने लगा, उसको ढूंढने लगा। And she finds that coin. अंत में उसको एक सिक्का मिल गया। Please tell me by yourself what a joy it will be to find that. आप बताइए कि आप खुद बताइए कि कितना आनंद होगा ये जब मिल जाता है। And she will clean it, and she will keep everything. She will make it 10, and she will enjoy. There will be great joy, satisfaction.
और वो सिक्का को लाया और उसको साफ करके वो फिर रखा, उसके पास अभी 10 सिक्का हो गया और अभी उसका मन में बहुत आनंद है। Is it not true? ये क्या सच नहीं है? You would have lost something in your house. आपका घर में कुछ खो जाता है You would have been searching for it. और आप उसको ढूंढते रहे हैं। Sometimes we search things which some other things, and in that process we get something else for which we were searching for a very long time. हम लोग कुछ ढूंढते रहे हैं और उसी समय बहुत दिन हुआ कुछ खो गया और उसी समय जब उसको मिल जाता है, Suppose you lose your ring, शायद आपका gold ring. आपका सोना का अंगूठा खो गया, Will you be quiet? आप क्या चुप बैठेंगे? Any number of days we will keep on searching for it. जितना दिन भी हो आप उसको ढूंढते रहेंगे। Until we find, we will keep on searching. जब तक वो आप ना मिले आप उस दिन तक ढूंढते रहेंगे। This is the second case. ये है द्वितीय विषय। And third case, तृतीय विषय में verse number 11. 11 पद में, And he said, a certain man had 2 sons. किसी एक मनुष्य का 2 पुत्र थे। And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. और उनमें से छोटा ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey unto a far country, and there wasted his substance with riotous living. बहुत दिन तक वो बीत थी, वो अपनी संपत्ति वो पिता बांट दी और छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपना संपत्ति उड़ा दी। Here a man had 2 sons. यहाँ एक व्यक्ति का 2 बेटा है। And the younger fellow who is always a mischievous people, younger people are mischievous in our houses also. एक छोटा बेटा, जो छोटा बेटा हम लोग का घर में होता है, एक दूसरा तरह का बेटा होता है। And this fellow, he demanded the 50% of his father's wealth, and he had gone away. He was lost, and he got lost and with the riotous living. और पापा से ये छोटा बेटा अपना संपत्ति का भाग मांगी और उससे लेके वो बुराई संगति में उड़ा के वो खर्च कर दिया। Some people are like that. ऐसे बहुत सारा का लोग होते हैं। They will not listen to instructions. और उन लोग किसी का बात नहीं सुनते। What they see is temporarily the joy, the life and money and this and that and all. So they will foolishly spend their money, their life, and they will be wasting their life. थोड़े दिन के लिए उन लोग जो आनंद खुद ढूंढते हैं कि मिलता है, जो पैसा धन और शरीर को अच्छा से बिताना, यो संसार के लिए वो उसको उसी के पीछे चलते हैं। Jesus Christ is giving this example here. प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण यहाँ दिया है। God is teaching us with beautiful examples. और ईश्वर ने हम लोग को बहुत अच्छा उदाहरण से बताया है। Now this son is lost. एक बेटा चला गया। There 100 sheep, 1 sheep lost. वहाँ 100 भेड़ थे, एक भेड़ चला खो गया था। Second 10 silver coins, 1 coin lost. और द्वितीय में 10 सिक्के थे, एक सिक्के खो गया। And 2 sons and 1 son gone. और यहाँ एक आदमी का 2 बेटा था, एक बेटा चला गया। In the earlier case it is a sheep and a coin, of course full under control. और पहले का विषय में भेड़ और सिक्के था, वो उसको ठीक से हम लोग कर पाए। But in the last case, बड़ा अंत विषय में, that is the third case, और तृतीय विषय में, the man who had gone away should by himself come back. जो आदमी वो खुद चला गया और वो खुद वो फिर लौट कर आना पड़ेगा। I am not going to talk about the younger son today. मैं आज एक छोटा बेटा के बारे में बताना नहीं जा रहा हूँ। Please give a continuous reading till the end of this chapter. You will find that this younger son repented for his sins and came back to the father. आप इस अध्याय को ठीक से पढ़िए और पता चलेगा कि आप छोटा बेटा एक दिन आपका जीवन में अनुताप करके और फिर लौट के चला आ गया। There was a great joy and a celebration in the house of the father. और उसी दिन उसी घर में एक बड़ा सा आनंद का उत्सव हुआ वो पिता के साथ। Well, that is not my subject now. मेरा विषय ये नहीं है अभी इस कार्यक्रम के द्वारा। But there was a elder boy. बट इसी परिवार में एक बड़ा बेटा था। His attitude was very, very bad. और उसी का जो व्यवहार था वो बहुत बुरा था। In the beginning, the younger son was bad. और शुरू से वो छोटा बेटा बुरा है। But in the later days, this younger son was good because he repented, felt very bad for what he had done, and came back to the father asking forgiveness, and he was blessed. और अंत का समय में वो छोटा बेटा अनुताप करके
वो लौट के चला आया पिता के पास और पिता खुशी से आनंदित होकर उसका ग्रहण किया। But then the elder boy was always there in the house of the father and he became very wicked. बट बड़ा बेटा वो पिता के घर में है परंतु वो बहुत दुष्ट है। There are a few things I would like to point out, statements that this elder fellow made in the Bible. और मैं वो बड़ा बेटा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ इसमें जो लिखा गया। The first thing is found in verse number 27. और 27 पद में 15 का 27 पद में जो लिखा गया। Very carefully listen, my brother and sister. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. प्रिय भाई और बहनों, थोड़ा ध्यान के सुनिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटाया है, इसलिए कि उस भला चंगा पाया है। See, when the younger brother returned home, because he was not having any food and he lost his health, lost money, everything, its situation was very bad, very pathetic. A father received him with so much of joy. छोटा बेटा जो चला गया था, वो अपना सब कुछ वो हरा दिया और उसका जीवन का अंत में पूरा नष्ट हो गया। वो खाना नहीं मिलता था और जब अनुताप करके आ गया और पिता उसी में खुश होकर आनंद बना रहा है। What he did was very wrong. वो ठीक बात है, छोटा बेटा जो किया है वो पूरा खराब काम किया But है। he had a good heart. परंतु उसका हृदय एक भला हृदय And था he felt very sorry for what he had done. और जो वो भी अनुताप किया, जो कुछ किया है वो उसमें वो बुरा किया है। So father had compassion on this fellow. और पिता का उसके ऊपर दया हुआ, Because he is his own son. क्योंकि वो अपना बेटा था, No problem. उसमें कोई समस्या नहीं है। Money may go. पैसा चला सकता, But जा if, सकता है। if son goes, जब बेटा चला जाएगा, what a sad thing is that. कितना दुख का विषय है। So when the son came back, the father was so joyful to receive, and he made a very good meal. He cut a calf and made really what a party it was. और वो जब अनुताप करके लौट के आ गया, और पिता का मन में ये कितना खुश हुआ। उसी दिन एक बड़ा उत्सव बनाया और एक बछड़ा भी काटा। The same way, when we repent and go to God through Christ Jesus, God is very happy to receive us. ठीक उसी तरह हम लोग जीवन में जब हम लोग का कार्य के लिए हम लोग अनुताप करें और परमेश्वर के पास लौट के आ जाए, पिता परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। God is respecter of no persons, and he created us, and he wants us to come back leaving all our sinful habits, and he is ready to cleanse us. He is ready to make us as his own children. He will not cast anybody out. पिता परमेश्वर का यह ध्यान है कि हर एक व्यक्ति अपना जीवन में अपने को देखे और अनुताप करके उसके पास लौट के आए, और उसके पास कभी भी वो नहीं सकता है किसी को दूर कर देगा, परंतु वो प्रेम से वो अपने को ले सकते हैं। How to go to God? हम लोग ईश्वर के पास कैसे जाएंगे? There is a way. एक मार्ग है। There is a way. एक मार्ग है। And Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने I कहा, am the way. मैं ही वही मार्ग हूँ। I am the truth. और मैं हूँ सच्चा हूँ। I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। Father sent Jesus to this world. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। That means he sent a way. तो इसका अर्थ यह है कि एक मार्ग बनाया। Jesus is not a way, he is the way. यीशु मसीह एक मार्ग नहीं है, परंतु वो एक ही मार्ग है। So how to reach God? तो इसलिए हम लोग कैसे ईश्वर के पास पहुंचे? Walk through the way God has provided. हम लोग उसी मार्ग में चले जो ईश्वर ने बनाया है। And that way is Christ Jesus. वो मार्ग है यीशु मसीह। So my dear brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, the elder fellow was angry. और उसी उत्सव को देख के वो बड़ा बेटा गुस्सा होने लगा। I am now talking about the attitudes. और मैं अभी यहाँ उस व्यवहार के बारे में बताना चाहता हूँ। Attitudes will really matter, because they will either bring blessings or they will bring curse upon us. हम लोग का जीवन में जो व्यवहार वो उसी के द्वारा हम लोग का आशीष ला सकते हैं, नहीं तो अभिशाप भी ला सकते हैं। This brother, he should have been very happy on seeing his younger brother returning home. और बड़ा बेटा उसी दिन का उत्सव देखकर वो जरूर खुशी होना चाहिए। But instead of getting happiness, he was angry. और नहीं होकर वो गुस्सा होने लगा। And there he says, looks at his father, and he says, and the father says, "Thy brother has come." और उसने वहाँ देखा और उसने पिता के उत्तर दिया और क्या कि सुन, तेरा भाई आ गया। The elder brother was hearing some music. और उस समय वो बड़ा भाई कुछ सुनने लगा, उत्सव का कुछ संगीत का स्वर। So he is asking the workers in the field, what has happened now? और
जो उन लोग वहाँ जो काम कर रहे थे उन लोग को पूछने लगा ये यहाँ क्या हो रहा है। When he was returning home after his work in the field was over, he started listening to the music and all merrymaking, and so he looked at the fellow servants and said, "What happened? What is wrong? What is happening in the house? Why people are happy?" जब बड़ा बेटा उस समय कार्य से लौट रहा था, उस समय वो देखा कि घर में कुछ आनंद है और उत्सव बना जा रहा है, और अपना दास दासी को पूछा कि क्या हो रहा है। And the servants are telling to this fellow, the elder fellow, और वो वहाँ का दास दासी वो बड़ा बेटा को ऐसे बताने लगे, "Your brother is come. अरे आपका छोटा भाई लौट आ गया। Your father had killed a fatted calf." आपका पापा ने एक बछड़ा काट के उसको भोज बनाया। You look at the happiness in the faces and in the hearts of the servants there. और वो जो दास दासी ने बताने लगा, उन लोग का मन में भी खुश था। My dear friend, प्रिय भाई और बहन, servants are having joy, वो दास दासी का मन में खुशी है। but he is the eldest son. वो घर का बड़ा बेटा है। Even the happiness which the servant has, he doesn't have. और जो खुशी वो दास दासी के मन में है, वो खुशी उसी का मन में भी नहीं है। And the last boy was his own younger fellow. और जिसके लिए बना गया वो अपने छोटा बेटा है, छोटा भाई है। Above everybody, he should have been first person to become happy. और सबको छोड़ो, वो पहला आदमी जो उसको खुशी होना चाहिए। He should be now dancing. और वो सुनकर जरूर नाचना चाहिए। अरे my dear friend, just see the attitude of this boy. और मेरे प्रिय बंधु, आप देखिए ये क्या उसका व्यवहार। And in verse number 30, और पद 30 में, but as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with the harlots, thou hast killed for him the fatted calf. परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दिया है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटाया। He straight went to his father with a very angry face. वो गुस्सा से अपने पिता के पास सीधा चल गया। Oh, he was raging with anger, jealousy, pride, hatred, vengeance, everything inside. वो अपना मन में गुस्सा, हर तरह का क्रोध, हर तरह का उस विषन्नता से वो अपना पापा के पास गुस्सा से चला गया। He lost his peace. और वो अपना खुद का शांति वो हरा दिया। Today many people are like this. और आज इस तरह का बहुत सारे लोग हैं। People don't have the heart to share somebody's joy. लोग आज प्रस्तुत नहीं है कि दूसरा का खुशी में खुद खुशी होने के लिए। People are very selfish. आज लोग स्वार्थी बन गए। They want everything, but they don't want others to have anything. और उन लोग चाहते हैं कि खुद को सब कुछ मिले पर दूसरे को ना मिले। The father was looking at the face of the elder fellow. और उस समय वो पिता ने अपने बड़ा बेटा को देखा। What can the father do? और पिता उस समय क्या कर सकते हैं? So this fellow comes with so much of force, with violence. और उस समय वो क्रोध से वो अपना पिता के पास खड़ा है। And he says, वो बोलने लगा, your son was come. ओ आपका बेटा आ गया। He accuses the father. वो अपना पिता को दोष दे रहा है। He says, your son. आपका बेटा आ गया। He could have said, my brother. वो ऐसे बता सकता था कि मेरा छोटा भाई आ गया। Who is your son? आपका बेटा कौन है? He is your own brother. वो खुद आपका तुम्हारा छोटा भाई है। You don't have love for him. क्या तुम्हारा छोटा भाई के लिए तुम्हारा प्रेम नहीं है? How we see in this world, in a loveless world. और कितना ये संसार में हम लोग देखते हैं जहाँ प्रेम विहीन है, प्रेम नहीं है। Are you not looking for this love and going from one corner of the world to another corner, seeking in people's hearts? क्या आप जब ये प्रेम के बारे में जानते हैं क्या? उस प्रेम को पाने के लिए संसार का एक कोना से हर एक कोना मनुष्य का हृदय में नहीं पहुंचने के लिए आप चाहते हैं? You don't find this. परंतु आप नहीं मिलेगा ये प्रेम। My dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the man's love is only selfish love. मनुष्य का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। But God's love is not selfish. परंतु ईश्वर का प्रेम में स्वार्थ नहीं है। God loved us even though we are sinners. परमेश्वर ने प्रेम किया जब हम लोग पापी थे। Even knowing the fact very well that we are sinners and ready to be condemned and to be judged, but He still loved us. वो जानते थे कि हम लोग पापी है, हम लोग विचार से हम लोग उसका गौरव में हम लोग रहित थे, हम लोग दंड मिलना चाहिए, परंतु
उसी से हम लोग प्रेम करने लगा। There is no match for the love of God through Jesus Christ. और यीशु मसीह को देख कर वो जितना प्रेम बताया है उसी के साथ किसी में तुलना नहीं कर सकते। Bible says God so loved the world. और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने इतना हम लोग को प्रेम किया। No man can love other person so much. एक आदमी दूसरे आदमी को, व्यक्ति को इतना प्रेम नहीं कर सकेगा। God, man's love may be good love, मनुष्य का प्रेम शायद भला है, but cannot be perfect love. परंतु उसमें संपूर्णता नहीं है। Jesus Christ loved us with perfect love. और ईश्वर ने हम लोग को सिद्ध प्रेम किया है। Only God can love us like that. और इसी तरह का सिद्ध प्रेम परमेश्वर केवल कर सकता है। People who pluck the beard of Jesus. और लोग ने उस यीशु मसीह का दाढ़ी को उन लोग को टानने लगा। Can anybody pluck the beard and the person be happy? और क्या कोई आदमी कोई किसी का दाढ़ी को उसी को टानने लगा तो कष्ट कैसे खुशी होगा वो? What an agony it will be. और कितना कष्ट होगा वो? They put a crown of thorns. और कांटे का मुकुट उसको पहना दिया। They took the thorn, the branch. और जानते हैं एक डालिया का जो बड़ा बड़ा कांटी था उसी And को with मैं that, बनाया and with that they made a crown. और उसी में वो एक मुकुट बनाया And they placed it on his head. और यीशु मसीह को उसको पहना दिया। And they took a small stick. और उसमें एक छोटा बाड़ी लिया And then they just stuck that और उसी crown. और लकड़ी से उसको जो मुकुट कांटी का मुकुट पहना है उसमें वो ठोक दिया। And the thorns went inside. और वो कांटी यीशु मसीह का माथा का अंदर चला गया। Historians, they say that one of the thorns just went inside the eyes and then came through the eyes. और ऐतिहासिक ऐसे बताते हैं कि वो एक कांटी जब उन्हें ठोक दिया तो एक कांटी अंदर में घुस के आग के तरफ निकल आया। How to bear this agony without reacting? कितना ये कष्ट कौन सह सकता है जब वो दुख नहीं लेगा दूसरे का? Can any man be quiet after seeing all these things? क्या कोई आदमी ऐसे चुपचाप बैठ सकता है ये सब जानकर भी? Dear friend, how often we fight with others for just petty issues, small issues. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग छोटा छोटा कारण में कितने बार दूसरे के साथ हम लोग गंडगोल किया। When somebody does something good, we will also retaliate. We will say we will do good to them. और हम लोग के बुराई में हम लोग जो कोई कुछ करता है हम लोग उसी का हम लोग प्रतिहिंसा होकर प्रति उत्तर देते हैं। But when a man is bad, we will also become bad. और जब मनुष्य बुरा होता है हम लोग भी बुरा हो जाते हैं। Sometimes we become more bad. हम लोग उसी से भी बुरा बन जाते हैं। Please accept the truth. सत्य को ग्रहण कीजिए। My dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, Jesus endured this suffering. और प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट को अपने सहा। What I have told you is nothing. मैं जो आपको बताता हूँ वो कुछ नहीं है। His body was plowed like a land. और उसका शरीर में वो खेती जैसे बनाता है उसको ऐसे बना दिया He गया। endured and suffered with so much of patience, and he went finally up to the cross and shed his last drop of blood for you and for me. और अपना शरीर में वो हर एक कष्ट को सहा आपके लिए, मेरा लिए, और क्रूस के ऊपर जाकर अपना लहू दे दिया। His blood has to be shed, otherwise our sins cannot be forgiven and we cannot be accepted by God. उसका लहू से वो बहना चाहिए क्योंकि उसी लहू से हम लोग का और आपका पाप सब कुछ वो धो दिया। Jesus Christ offered his blood as a sacrifice for our mistakes, for our blunders, for our sins, for our blasphemies, for our shortcomings and for our transgressions. और यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया आपके लिए, हम लोग का हर एक पाप के लिए, बुराई के लिए, दुष्टता के लिए, हम लोग जितना मंद काम अपना जीवन में किए हैं उसी के लिए। For every wrong things, for every mistake, there is something called punishment in this world. हर एक बुराई, हर एक भूल कार्य के लिए एक दंड है। In the same way, ठीक उसी तरह we have sinned and lost like the younger fellow. और हम लोग पाप कर चुके हैं और हम लोग उसमें पूरा खो दिए हैं जैसे छोटा बेटा किया है। And we are liable for punishment now and judgment of God. और हम लोग के लिए दंड एक ही कार्य बचा है। But God of all mercies and love, He sent His Son Jesus to die on the cross on your behalf, on my behalf. Therefore, He paid that penalty in full and set us free. और वो ईश्वर जो महान दयालु और प्रेमी ईश्वर है आपके लिए और हम लोग के लिए वो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर वो चढ़ाया अपने एक लौता बेटा को, और हर तरह का हम लोग का दंड को
अपना जीवन में ले लिया और उसको क्षमा कर दिया। And when he was hanging on the cross, he said, Father, forgive them, for they know not what they do. Please forgive them, Lord. और यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, उसी के ऊपर वो प्रार्थना किया कि हे पिता, तू उन लोग को क्षमा कर दे, क्योंकि उन लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Who can say this? ऐसे कौन बता सकता? Can you say? क्या आप बताएंगे? Can I say? क्या हम लोग ऐसे कहेंगे? No human being can say that. ऐसे कोई भी मानव नहीं बता सकता। However good she or he may be, और जो लड़का की लड़की जितना भी अच्छा हो ना no क्यों man हो, can go to the cross and die on behalf of somebody else who is a wretched sinner. और दूसरे के लिए कोई जो इतना बुरा है, कोई भी इतना अपना दूसरा का पाप लेकर कोई भी क्रूस के ऊपर नहीं मरेगा। If a man had gone there, he must be God. और जो आदमी वहां गया है, वो मनुष्य जरूर ईश्वर है। His love is divine. उसका प्रेम ऐश्वरिक है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल ये बताती है, behold what manner of love the Father has shown to us, that we might be called as sons of God. और देखो जो परमेश्वर ने जो प्रेम रचा यहाँ मनुष्य के ऊपर, इसलिए कि हम लोग उसको अपना बेटा और बेटी बता जाए। That's why इसलिए the word of God tells us ईश्वर का वचन ऐसे बताती है in John 3:16, और यूहन्ना उसका 3:16 में, God so loved the world. और ईश्वर ऐसे प्रेम किया। He so loved, that means his love is supreme and cannot be compared with even the mother's love in this world. और वो इससे प्रेम किया जो प्रेम को किसके साथ तुलना नहीं किया जा सकता, माँ से अधिक प्रेम किया। He will never leave us nor forsake us. वो कभी हम लोग को छोड़ेगा नहीं कि भूलेगा नहीं। So what is the attitude of God? और ईश्वर का व्यवहार कैसा है? Look at what is the attitude of this boy. और आप यहाँ देखिए लड़का का व्यवहार कैसा He है। goes with such a arrogant manner, and then he is asking his father, your son has come, your fellow, that idiot, this fellow, that fellow, and he is talking like that. और ये अपना मन में गुस्सा लेकर कठिन मन में अपना पिता के पास गया वो लड़का, और बोला कि आपका बेटा जो बेटा चला गया, जो बेटा खराब काम करके आया, जो बेटा आपका पैसा उड़ा दिया, ओ ऐसे उसको पिता को दोष देने लगा। My dear friend, let me just cut a small joke here. मेरे प्रिय बंधु, में एक खुशी का विषय मैं बताना चाहता हूँ। If a son gets very good mark एक in बेटा the examination, जब परीक्षा में एक बेटा अच्छा नंबर लेके आता है, the father says, my son scored very good mark. और पिता बताता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा नंबर रखा है। But if that scoundrel, he gets only 20 marks, 10 marks, और जब वो दुष्ट जो खराब मार्क नंबर लेके आता है, the daddy will tell mummy, और पिता ने ऐसे बताते हैं, your son, और माँ को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा, your son is a buddhu. तुम्हारा बेटा एक मूर्ख है। He doesn't have anything in his mind, brain. और उसका बुद्धि कुछ नहीं है। Your son has clay. और एक मिट्टी जैसा है तुम्हारा बेटा। But if that fellow gets 100 out of 100, जब वो बेटा 100 से 100 लेके आता है, my son has gold in the brain. और पिता उसमें बताता है कि मेरा बेटा एक सोना का बेटा। This is normally what human beings do. ऐसे होता है जो मनुष्य का जीवन में। But this fellow should have been very happy when his younger brother came back home. ये बड़ा बेटा खुशी होना चाहिए क्योंकि उसका छोटा भाई जब आ गया घर को। And the father was very, very upset with the statement of this elder fellow. और पिता ये सब सुन के अपना मन में बहुत दुख किया। Earlier days, he was very unhappy and very sad because the younger fellow gone out of the house. पहले से वो दुखी था क्योंकि वो छोटा बेटा घर छोड़ के चला गया था। But then while he was happy, this elder fellow started creating trouble to him. और वो जब खुशी में है उस समय बड़ा बेटा आकर उसी को दुख दे रहा है। What a sad thing is that. कितना दुख का विषय है। What is your attitude, brother? आपका व्यवहार इसके ऊपर क्या है? Your attitude will either bless you or will bring a curse upon us. आपका व्यवहार आपको आशीष ला सकता है और नहीं तो अभिशाप दे सकता है। You see, many people are not able to be blessed in this world because their hearts are not good. इस संसार में बहुत सारे लोग आशीषित नहीं है क्योंकि उन लोग का हृदय और ठीक तरह का नहीं है। Jesus said in Matthew's Gospel 5th chapter, और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 5 अध्याय में ऐसे बताया, Blessed are they in their hearts that they will see God. धन्य है वो जिन लोग अपने हृदय में ईश्वर को देखते हैं। Blessed are the pure in their hearts,
they shall see God. और जो धन्य है वो जो पवित्र है वो ईश्वर को देखेगा। Internal purity is, inner purity is very important. अंदरूनी में जो पवित्रता वो बहुत मुख्य विषय है। Man is not pure by himself in the inner. मनुष्य खुद को कभी अंदर में पवित्रता नहीं बना सकता है। What can wash him? What can make him clean? जितना वो अपने को धो दे और जितना साफ बनाए वो नहीं What बन can सकता। wash away our sins? और क्या हम लोग को पाप को धो सकता है? It's only God's blood can और wash away. वो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू से वो हम लोग को धो सकते हैं। And God sent His Son to die on the cross. ईश्वर ने अपना एक ना लौता बेटा भेजा वो यीशु मसीह को जिसके द्वारा हम लोग धो सकते हैं। So it is the blood of Jesus that can cleanse us clean. तो इसीलिए वो यीशु मसीह का लहू है जो जिसका लहू से हम लोग पवित्र बन सकते हैं। Every unrighteousness can be cleansed by His blood. हर एक अधार्मिकता उसी का लहू से संपूर्ण साफ हो सकता The है। only condition is एक उसमें ध्यान देना we है should first of all admit that we are sinners और पहले हम लोग का खुद का पाप को हम लोग को जानना होगा and repent and feeling very sorry for committing those sins against God और उसी पाप को जान के हम लोग अनुताप करके ईश्वर के पास आना होगा and humble ourselves and ask Him, और हम लोग को नम्र बना के खुद ईश्वर को पूछना होगा Lord Jesus, cleanse me with your own blood and forgive my और sins. ऐसे बताना होगा, हे प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप को धो दे और मुझे क्षमा कर। He is ready to forgive every unrighteous. और ये प्रस्तुत है कि हम लोग का हर एक पाप को क्षमा देने के लिए। There will be great joy in your heart. और उस समय आपका हृदय में एक आनंद आ जाएगा। God wants to give you this joy और ईश्वर through चाहते हैं this कि वो program. आनंद इस कार्यक्रम के द्वारा आपको देने के लिए। Through this program, इसी कार्यक्रम में not only your forgiveness of sins, केवल आपका पाप को क्षमा देने के लिए नहीं, also the bodily healing, आपका शरीर को चंगाई देने के the लिए, mental healing. आपका मानसिक को चंगाई देने के लिए। God wants to bless you in totality. और ईश्वर चाहते हैं कि आपको संपूर्ण आशीष मिले। You are not having peace आपका जीवन में शांति नहीं है because you don't know where to get peace. आप नहीं जानते कि कहां से शांति मिलेगा। But today through this program, peace is coming to you. आज इस कार्यक्रम में आपके पास शांति आ रहा है। Peace cannot be manufactured. शांति को बना नहीं जा सकता। Peace cannot be purchased. शांति को हम लोग बाहर से खरीद नहीं दे Only सकते। Prince of Peace can give you. केवल शांति का राजकुमार वो आपको दे सकता है। He is the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। Jesus Christ is the Prince of Peace. प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, I give my own peace to you. मैं तुमको मेरा शांति देता हूँ। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, this peace is free. ये शांति आपके लिए मुक्त है। It is not from the world. ये संसार से वो शांति नहीं आया It's है। not from your mother, father, brother, sister. ये कोई आपका माँ पापा भाई बहन से नहीं आया। The peace in this world will come and will go. ये संसार में जो शांति है वो आएगा और चला जाएगा। But peace that comes from heaven through the Lord Jesus Christ will never leave you nor forsake you. जो शांति स्वर्ग से आता है पिता के द्वारा वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं भूलेगा। It cannot be taken out of your hearts. और कभी भी वो शांति आपका हृदय से नहीं लिया जाएगा। It's a permanent peace which passes all understanding in this world. और यह अनंत शांति है जो आपका जीवन में पूरा भर देगा। Cheer up through this program, my friend. आप आनंदित हो जाइए कार्यक्रम के Let us द्वारा। come back to the attitude of this boy. आइए हम लोग इसी बड़ा बेटा का व्यवहार को देखें। Secondly, द्वितीय में what is there in the heart of this boy that he is talking to his father in a very rude manner? उसका हृदय में क्या है कि वो जाकर पिता को ऐसे कठिन शब्द बोला। The bad attitude is that he was not ready to share the joy of others. और उसका एक बुरा व्यवहार था कि वो दूसरा का आनंद में आनंदित नहीं हो रहा था। When somebody is happy, you are unable to be happy. जब दूसरा का कुछ खुशी है आप उसमें खुशी नहीं जता सकते। Why somebody, your own brother or your own sister is getting married or getting blessed with a child and you are not happy? और जब आपका भाई और बहन जब उसका बेटा लोग को शादी होता है कि कुछ मिल जाता है खुशी होते हैं आप खुशी नहीं होते। You may say it is, people show their happiness outside. This is something like a plastic smile. और लोग शायद बाहर से उसी को खुशी जता सकते हैं परंतु वो एक प्राकृतिक खुशी नहीं है। A plastic smile, they will smile. उसको बोलते हैं प्लास्टिक स्माइल है। But inside they are not smiling. परंतु उसका अंदरूनी में खुशी नहीं है। That deep down in their hearts the jealousy is there. और हृदय का गंभीरता में उसको देखने से पता चलेगा उसमें कुछ ईर्ष्या है। If not, they show at one moment, definitely they will show in some other moment their displeasure. शायद उसी समय वो नहीं दिखा सकेंगे परंतु दूसरा समय जब आएगा
वही जो उन लोग का हृदय का जो ईर्ष्या है उसको दिखाएंगे। How many times we hear people talking at our backs evil about us. और हम लोग कितने बार देख चुके हैं कि लोग हम लोग का पीछे बोलने, हम लोग का बुराई बोलते They हैं। use fantastic buttering words in front of us, and at the back they will pierce with the sword. और हम लोग को सामने कितना अच्छा सुंदर बात बताते हैं, परंतु हम लोग पीछे हम लोग को बुराई करते They हैं। will cause pain in our hearts. और उसको जब हम लोग जानते हैं हम लोग कष्ट होता है। You have experienced that. वो आपको अनुभव है। But परंतु don't get angry. आप गुस्सा मत होइए। Are you the person who is causing that problem to others? क्या आप वो आदमी है जो इसी तरह का समस्या दूसरे को देते हैं? Your good attitude will bring good results. आपका अच्छा व्यवहार आपका जीवन में अच्छा फल लेके आएगा। If you want somebody from your heart to be blessed and live happily, you know God will bless you. और जब चाहते हैं आपका व्यवहार से कुछ अच्छा बने तो ईश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। If somebody says, no, I want to destroy somebody's life and that is my happiness, and there is, remember, God is there to destroy your life. और जब नहीं कोई ऐसे बता सकता है नहीं मैं दूसरों को जरूर प्रतिशोध लूंगा और उसका जीवन में बुराई लाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिए ईश्वर भी आपका जीवन में हर तरह का बुराई लाएंगे। Please remember, God is always good. ध्यान दीजिए ईश्वर सर्वदा भला है। But it is our attitudes that really either that bring blessings or curse upon ourselves. और ध्यान दीजिए कि हम लोग का वो व्यवहार है जिसके द्वारा हम लोग आशीष ला सकते हैं, नहीं तो हम लोग को अभिशाप मिलता है। Maybe you are heading on for some trouble, not knowing that what you are doing is really wrong. आप शायद नहीं जानते कि आप कौन सा रास्ते में जाते हैं, But God is talking to you through this program. और ईश्वर ने इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बताता है। Stop, बंद कीजिए, think, चिंता कीजिए listen to the word of God. और ईश्वर का वचन सुनिए Turn to God. और ईश्वर के पास आ जाइए। Ask God to look into your heart. और ईश्वर को बोलने लगा कि ईश्वर मेरा हृदय देखो। Your own conscience is telling you who you are. और आपका विवेक कैसे बताता है कि आप कौन है। Humble yourself down नम्र हो जाइए अभी and return to Jesus. और ईश्वर के पास आइए And ask Him to forgive your bad things and wrong things. और ऐसे प्रार्थना कीजिए कि आपके पास जो बुरा व्यवहार है, आपका बुरा चरित्र है, उसको क्षमा कर दे। The blood of Jesus Christ will cleanse you from every unrighteous act that you have done. और यीशु मसीह का लहू और आकर आपका हर तरह का बुराई से धो The देगा। Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. और बाइबल ये बताता है कि 2 कोरिन्थियंस उसका 5 उसका 17 में, If any man is in Christ, जो मनुष्य ईश्वर के साथ है he is a new creation. वो एक नया सृष्टि है। If any man is in Christ Jesus, जो मनुष्य यीशु मसीह के साथ है he is a new creation. वो एक नया सृष्टि है। All the old has gone away. हर तरह का पुराना जीवन चला गया Everything has become new. और सब विषय एक नया हो गया। God wants to make you a new person in Christ Jesus through this program. और इसी कार्यक्रम के द्वारा ईश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आपको एक नया बनाए। And this Jesus says और ये यीशु मसीह बताते हैं in Revelation chapter 3 verse number 20. और प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 20 में, I stand at the door and knock. देख मैं द्वार के पास खड़ा हूँ If any man opens the door और जो मेरा स्वर सुन के वो द्वार खोल देगा and welcomes me, और वो मुझे बुलाएगा I will enter into their hearts और मैं जाकर उसका हृदय में वास करूंगा and I will dwell there. और मैं जाकर उसके साथ रहूंगा। Who is this Jesus? वो कौन है? वो यीशु मसीह। This Jesus is Prince of Peace. वो यीशु मसीह शांति का राजा You है। have been longing for this peace for a very long time in your life. शायद आप इस शांति को आप बहुत ढूंढ रहे हैं आपका जीवन में बहुत दिन से। All the material benefits and everything, that peace is only temporary, but you have been longing for a peace deep within your heart. और जो वस्तुवादी आपके पास शायद आपके साथ है वो थोड़े दिन के लिए आपको शांति देगा, परंतु यीशु मसीह का शांति आप ढूंढते आ रहे हैं। Today God of peace is knocking your heart. और ईश्वर का शांति का राजा आपके द्वार के पास खड़ा है। First attitude of this boy is that he started accusing his father. और पहला व्यवहार वो जो लड़का दिखाया अपना पिता के ऊपर वो गुस्सा का था। Why did you receive him back? और पिता को ऐसे बोला क्यों वो बेटा को आप बुलाया घर, And he started blaming his brother. और उसका छोटा भाई को वो दोष देने लगा। This boy had spent your money with harlots, with prostitutes. मेरा छोटा भाई आपका पैसा लेकर वो बेश्यालय में सब पैसा खर्च कर दिया। He was not ready to share the joy
with others. वो प्रस्तुत नहीं था कि दूसरे का आनंद से खुद का आनंद को वो भागी करे। And fourthly, चौथा में, this boy had another bad habit. और ये बड़ा बेटा के पास और एक बुरा He व्यवहार was था। reminding the sins of his younger brother to the father. वो उसको ध्यान में लाता है और मन में लाता है पिता के पास, जो बुरा काम सब वो छोटा भाई ने किया है। That means he was digging the past of his brother. उसका अर्थ वो सब उसको निकालता है जो छोटे भाई का पाप था। Bad, past is bad. वो अतीत वो बहुत बुरा है। Anything that is buried will stink. जो चला गया उसको जो हम निकालेंगे वो बुरा महकेगा। If you bury a dead body, a person who is dead, and bury the person and then dig it after 10 days or 15 days, wow, it will stink like anything. एक आदमी जब मर जाता है उसका शरीर को हम लोग जब गाड़ देते हैं और उसको एक बार जब हम लोग को गाड़ के निकलते हैं वो कितना खराब महकता है। Anything that is dead will stink. और जो मर जाता है वो जरूर महकेगा। How many times on the road, highways, some animals, dogs and whatever, so many animals would have been dead due to accidents, and for 1 or 2 days, if not attended, they will bring a foul smell. और जब हम लोग देखते हैं कि रास्ता में, बड़ा रास्ता में जब कोई पशु की पक्षी मर जाते हैं और उसका शरीर को कोई उठाने वाला नहीं है, दुर्घटना में मर जाते हैं और कोई उसका शरीर को उठाने वाला नहीं है, कुछ दिन के बाद उसका शरीर बड़ा महकता है। Similarly, ठीक उसी तरह all our bad habits, our sins, our past story is only a stinking story. और हम लोग का अतीत में जो बुरा स्वभाव है, जो बुरा काम है, उसको हम लोग जब एक बार उसको उठाएंगे तो वो महकेगा। Nothing sweet in that. उसमें कोई मिठास नहीं है। Our sins cause shame. और हम लोग का पाप उसमें लज्जा देता है। Yes, shameful. और उसमें लज्जित होना चाहिए। But when Jesus had come into our hearts, if he comes inside our hearts, he will remove that shame, he will cleanse us, and we will become a new creation, and there will be a new beginning in our life. और उस लज्जा को हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं, वो लज्जा को हटा देता है, ले जाता है और एक नया तरह का बना देता है। Yes, what a joy it will be. और उस समय जब नया बन जाता है कितना आनंद का विषय होता है। The boy is supposed to have enjoyed. वो जो लड़का वहाँ खुशी होना चाहिए। He is now, instead of covering the sins of his brother, he is now opening it. और जो उसको उसका भाई का पाप को छुपाना चाहिए वो उसको वहाँ खोल रहा है। Some people will have the pleasure of doing that in life. बहुत सारे लोग हैं आप ऐसे जीवन बिताने के लिए। They will pinpoint the mistakes to the higher authorities, and they will keep on reminding them, and the anger of the higher authorities will be upon us. और जो बड़ा उच्च पदस्थ ऑफिसर है उसका और उसके पास दूसरे का बुराई वो ऐसे खोलते हैं जो उसका ऑफिसर उसके ऊपर गुस्सा हो, दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाए। If the officer does not have a kind heart, soft heart, और जब उसका उच्च पदस्थ ऑफिसर जब उसका दयालु हृदय नहीं होगा, he will take it as the right opportunity to punish us. और उसी समय उसका एक मौका आ जाता है कि उसको दंड देने के लिए। And the man who is responsible for that will be very happy. और उसी दंड के लिए जो आदमी दंड पाना चाहिए वो जब जानता है कि उसको दंड मिला वो बहुत खुशी होता है। But our God is not like these bad officers. परंतु ईश्वर हम लोग का ऐसा ऑफिसर जैसा नहीं है। Our God will always cover our sins. और ईश्वर हम लोग का पाप को छुपा देता है। When we don't cover and accept and return and repent, जब हम लोग को पाप को छुपा नहीं सकते और ग्रहण नहीं कर सकते इसी समय, that very same moment he will cover our sins. और ठीक उसी समय ईश्वर आकर उसको छुपा देता है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है, he that covereth his sins shall not prosper. क्योंकि जो अपना पाप को छुपाता है वो कभी समृद्धि नहीं So होगा। we should not cover our sins. तो इसीलिए हम लोग का अपना खुद पाप को छुपा नहीं We should सकते। humble ourselves and take it to Jesus. और हम लोग उसी समय अपना पाप में नम्र होकर ईश्वर के पास लेना चाहिए And confess it to him. और ईश्वर के पास हम लोग को अनुताप करना चाहिए। Feeling very sorry from the bottom of our hearts. और हम लोग को दुखित होकर हृदय में स्वीकार करना होगा। That is very important. और वो बहुत मुख्य विषय है। Then he will cover our sins. और वो जान करके वो उस समय वो बंद कर वो छुपा देगा। And his blood removes that guilty feeling from our hearts. और उसी का लहू आकर हम लोग का जीवन में जो दोष दे रहे उसको वो हटा देगा। And he gives a new life to और us. हम लोग का जीवन में एक नया जीवन दे देगा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, look at the attitude of the elder boy here. आप यहाँ वो बड़ा बेटा का वो व्यवहार देखिए।
He was speaking about the past story. वो पिता के सामने अपना उसी छोटा भाई का अतीत बारे में बता But रहा the है। father was not at all interested to speak about his past story. पिता का कोई उत्साह नहीं था कि वो छोटा बेटा का बारे में अतीत विषय His सुनने के लिए। father was anxious to see that a new chapter is opened in the life of the younger son. पिता का ये उत्साह विषय है कि वो चाहता है कि छोटा बेटा का एक नया जीवन वो देखने के लिए। But this fellow's attitude was very, very opposite. बट बड़ा बेटा ठीक उसका विरोध का व्यवहार है। Dear friend, प्रिय बंधु, in the same way, ठीक इसी तरह some people will be like that. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। You know one thing, आप जानते हैं एक बात, there is an evil force in this world called Satan. एक मंद शक्ति है जिसको बोलते हैं शैतान। The Satan is a deceiving spirit. और शैतान वो क्या प्रताड़ना करता है, And this Satan is a liar. और वो शैतान झूठ शैतान है। The meaning for the word Satan in Hebrew एक हिब्रू में जो शैतान का शब्द अर्थ ये है, is like this. इसका अर्थ ये है Accuser. और एक दूसरे को दोष देने वाला, He is the accuser of human beings. वो दोषी करने वाला। Day and night he goes before God and accuses his people. दिन और रात वो ईश्वर के पास जाके वो बताएगा कि तुम्हारा लोग ऐसे कर रहे हैं। That is the spirit. और वो मंद आत्मा का ऐसे काम है। And this spirit is an enemy to our soul, our life. और वो मंद आत्मा हम लोग का जीवन में हम लोग का शत्रु है। And this enemy has blinded our eyes that we are unable to see Jesus. और वो मंद आत्मा हम लोग का आंख को बंद कर दिया कि हम लोग को यीशु मसीह को ना दे सके। Satan loves to dig our past. और शैतान चाहता है कि हम लोग का अतीत को हम लोग उसको खोदे। Satan wants to accuse us before God because of what we have done. और ईश्वर के सामने वो ऐसे बताता है कि हम लोग का अतीत में कितना बुराई काम किए हैं। But God wants to cover and give a new life. परंतु ईश्वर उसको छुपा देता है और नया जीवन देता है। But there is only one condition. परंतु एक उसका विषय है, We must feel sorry, repent and return to God. हम लोग को अपना कार्य में दुखित होना चाहिए और ईश्वर के पास स्वीकार करना होगा। And Jesus is the only way to heaven. और यीशु मसीह एक ही मार्ग है स्वर्ग के लिए। And when we don't repent, जब हम लोग अनुताप नहीं we करेंगे are still under the grip of Satan. और हम लोग उसी समय शैतान का कबल में है। But when we repent and know that Jesus Christ is the Son of God who came to this world to die on your behalf, और जब हम लोग जानते हैं हम लोग यीशु मसीह हम लोग के लिए आया और हम लोग जब अनुताप करके उसके पास जाएंगे, in my place and in your place he stood there. और हम लोग को जो हम लोग के साथ वो हम लोग के लिए जो खड़ा हुआ, Receive the King of Glory. और यीशु मसीह in our hearts. वो गौरव राजा को ग्रहण कीजिए। Satan loses his power and he leaves out of our hearts. और उसी समय शैतान हम लोग को छोड़ देगा अपना शक्ति से और हम लोग हृदय से चला जाएगा। So we become the children of God. और उसी समय हम लोग का परमेश्वर का संतान बन सकेंगे। What a joy it is. कितना आनंद का विषय। My dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, one man's attitude is like this. एक व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है। Elder son's attitude is like ये this. बड़ा बेटा था, Younger son's attitude was like छोटा बेटा का व्यवहार आपने देखा। that. Younger son was repenting, और छोटा बेटा अनुताप किया, but the elder son was very arrogant and proud. और बड़ा बेटा बहुत गर्वित और बहुत क्रोध करने वाला है। Jesus loves every one of us. प्रभु यीशु मसीह सबको प्रेम करता We है। should not be like the elder fellow. हम लोग को बड़ा बेटा का समान नहीं होना चाहिए, Be like the younger. हम लोग छोटा बेटा का समान होना Share the चाहिए। joy with others. और ये खुशी का विषय दूसरे के साथ आप बांटिए। The elder son was with the father only, और वो बड़ा बेटा पापा के साथ था, but he was not able to enjoy the relationship and love and warmth of the father. परंतु वो पिता का जो प्रेम और जो कोमल हृदय वो अनुभव नहीं कर He पाया। was still in the house, वो घर में था, but he was away from the house. परंतु वो घर के बाहर जैसा था। But the younger fellow went far away to country. पर छोटा बेटा वो बाहर घर से बहुत दूर चला गया। This connection between the father and the younger son was cut, literally cut. और वास्तव में पिता और छोटा बेटा का संपर्क कट गया था। But when he returned, repented and returned, जब वो अनुताप करके लौट के आ गया, the fellowship was restored again. उन दोनों का सहभागिता फिर बनने लगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, God wants us to have a fellowship, a पक्का fellowship with Christ Jesus. और ईश्वर चाहते हैं कि आप यीशु Through Christ मसीह Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ एक अच्छा संपर्क बनाए। It is possible only through Christ Jesus. ये संभव हो सकता है यीशु मसीह के द्वारा। So let us change our attitudes. तो आइए हम लोग का व्यवहार को परिवर्तन करें Let us change our attitudes and be blessed in और life. हम लोग को व्यवहार को परिवर्तन करके हम लोग यीशु मसीह का आशीष मिले। Attitude decides altitude. आशीष
हम लोग का व्यवहार, हम लोग का जीवन का कार्य में वो बताएगा। Instead of getting irritated, हम लोग उसमें विषन्नता नहीं instead होगी, of getting arrogant, हम लोग उसमें कठिन मना नहीं instead of होंगे, entering into argument, हम लोग उसमें वाद विवाद नहीं करके, instead of having a jealous heart, हम लोग ईर्ष्या हृदय नहीं लेके, instead of having wrath, हम लोग उसमें क्रोध नहीं होके, instead of having hatred on Jesus, हम लोग ईश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर घृणा नहीं instead of करके, having hatred on the people of Jesus, हम लोग ईश्वर का लोग को घृणा नहीं करके, it's time for us to humble ourselves. हम लोग को अभी समय आ गया नम्र होने के लिए, God's both hands of blessing will come upon you. और ईश्वर का दोनों हाथ आपको आशीषित You बनाएगा, will be blessed indeed, my friend. और आप जरूर आशीषित होंगे। May you and your household and families and generations be blessed in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से आप, आपका परिवार, आपका संपर्क के सब आशीष के ईश्वर के नाम से आशीषित हो जाए। Drop the old things down, my brother. अतीत का जीवन को आप बंद कर When दीजिए। you repent and return to Christ Jesus, He will start a brand new life in your life. अनुताप करके जब यीशु मसीह के पास आएंगे, आपका जीवन में एक नया तरह का He will बनेगा, make everything new in your life. आपका जीवन में हर एक विषय नया I बनेगा। am not telling a lie. मैं झूठ नहीं बता सकता हूँ, My life was like that up till 1982. और मेरा खुद का जीवन ठीक इसी तरह 1982 तक था, But Jesus made everything new on that day. परंतु यीशु मसीह आकर उसी दिन में मेरा जीवन को परिवर्तन किया। I invited Jesus, though I was not born in a Christian home. मैं यीशु मसीह को निमंत्रण किया क्योंकि मैं यीशु मसीह परिवार में जन्म नहीं हुआ था। My family was heading on to commit suicide. मेरा परिवार और आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। They are good educated people. हम लोग बहुत शिक्षा मिलने वाला एक अच्छा परिवार But में है। education gave us only temporary peace. शिक्षा थोड़ी दिन के लिए शांति दे सकता है। So our pattern, our way of living gave temporary peace. हम लोग का जीवन का शैली हम लोग को कुछ दिन के लिए शांति दे सकता है। The day when Jesus came into our hearts, और प्रभु यीशु मसीह जिस दिन हम लोग का हृदय में आ गए, He put a full stop for suicide. और हम लोग का जीवन में आत्महत्या को बंद कर दिया। Only He can do that. वो केवल कर सकते हैं, No man can do that. कोई मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। Thank God He did it. धन्यवाद परमेश्वर वो ऐसे किया। Thank God He gave me the wisdom and the little knowledge to know who He is and receive Him in my heart as my Savior. धन्य ईश्वर हो जो कि मुझे वो बुद्धि और ज्ञान दिया ऐसे करने के लिए। And Jesus is living in my heart today. और प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय में अभी तक वो जीवन है। Is He living in your heart? क्या वो आपका जीवन में वो वास कर रहा है? Welcome Jesus. आप यीशु मसीह को निमंत्रण कीजिए, Everything He will make new in your life. और आपका जीवन संपूर्ण और नया बना देगा। You will experience the newness of life. आप अनुभव करेंगे आपका जीवन कितना नया है, And you will bear a testimony to His name. और आप उसी नयापन में आप गवाही बनेंगे उसका। Jesus loves you very really. यीशु मसीह आपको वास्तव में प्रेम करते हैं। Your attitude decides the altitude. आपका व्यवहार आपका कार्यों को बढ़ाएगा। May the good Lord bless you and keep you. और मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। Continue to listen to this program. आप इस कार्यक्रम में आप सुनते रहें। Please bring your family members, your relatives, kith and kin, and watch this program without fail, and you be blessed. और आपका परिवार सबको बुलाए इस कार्यक्रम में और इकट्ठा बैठ के देखे और आशीषित बने। Let me pray for you. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father God, in the name of Jesus, I ask you, Father, that thou would convict your people of the sins. Yes, Father, that they might repent and return to you, Lord, through Christ Jesus. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू अपने लोग को प्रभु पाप के बारे में बताया और उन लोग को अपने पास आने के लिए बुलाया। The moment your people repent for their sins and turn to Jesus, you are ready to forgive and cleanse them and cover their sins, dear Lord. जिस समय तेरे लोग और अपना पाप के लिए अनुताप करके तेरे पास आएंगे, उस समय तू उन लोग का पाप को क्षमा कर दे और वो तेरे पास वो आने के लिए उन लोग को सब रास्ता दिखा। Our arrogance, our dear Lord, our anger, our unwanted notions that really take us away from your blessings, dear God. हे पिता परमेश्वर, हम लोग का खुद का जो अनिच्छा, क्रोध और बुराई हम लोग को तेरे तुझसे बहुत दूर ले गया। God, you want to bless your people really, Lord. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग को तू आशीषित बना। That is the reason you sent your son Jesus Christ, our Savior, into this world. इसी के कारण तेरी बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार को तू भेजा था। Kindly open the eyes of every brother and every sister to know this fact. दया करके हर एक भाई बहन का आँख
खोल दे कि तू तुझे देख सकेंगे, so that the attitudes will be changed. And Lord, you will, yes Lord, that they will have a very brand new life through Christ Jesus. और तेरी साहाय्य के द्वारा उन लोग का व्यवहार परिवर्तन हो जाए और अपने जीवन में उन लोग एक नया तरह का जीवन देखने पाए। Bless them, dear Lord. पिता परमेश्वर उन लोग को आशीष दे, Let them happily live, Lord. और उन लोग को खुशी से जीवन बिताने Let दे, them be saved, O God. उन लोग को परित्राण दे, Let them enjoy eternal heaven, O God. और उन लोग को स्वर्ग अनंत स्वर्ग का अनुभव करने दे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। Amen. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। जब मैं अंधेरे में था,